Hi everyone, good morning, Sat Shri Akal, Ram Ram. So this Friday morning, the session called The Story of Two Rounds, CAT. Before we move ahead, before we begin, before we start talking about things, let me just make it very clear to you all that this is purely a candid conversation. The agendum has to be clear to the students who are listening to me live, and at the same time, those who would be watching also later. This session has to do with getting to know more. What cat? Um, what's basically the first round you guys have been preparing for, and when you talk about the second round, how important the second round is, what all should go in our mind. Uh, this is going to be a pure pure candid conversation. It's not a very academic session. It is like you can always do whatever you're doing. You can always attend this session on the phone. Like, see, I always say that you must attend the workshops or the sessions on desktop or big screen laptop. But this session is going to be a purely a candid conversation. Candid means we just keep talking about the story of two rounds. CAT is not about written examination only. So let's go. Not going to be very structured talk or something. So this is the agenda. Now can you choose to stick to it, to listen to it? Let's see how much sense I would be able to make. Being an alumnus, I am Calcutta. Being not exactly I am Calcutta. Being an alumnus of I am, I had my own journey. How I, how what I went through, what all did I do, and everything. So based on that, not like I did this. No, based on that, whatever I've learned, whatever I could understand, that I sort of sharing with you guys. So, Hanji. Hi Tahir, good morning. ध्रुव अर्जुन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. महफिल तो जम गई है यहाँ पर. मुझे लग रहा था कि भाई ये तो अभी तो जनता एकदम ऐसा कैट 21 is around the corner, and more to do with the quant LRDI VRC. मॉर्निंग रोहित, मॉर्निंग. ऐसे सब में बिजी होंगे. हाँ, तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे. तो चलो कोई बात नहीं, द रिकॉर्डेड सेशन विल ऑलवेज बी देयर. पर चलिए, तो ये तो काफी ठीक सी महफिल जम गई है हमारी. चलो, पर तो बढ़ना जरूरी है जिंदगी में. ठीक है. तो कुछ गलतियां होती हैं जो हम बाद में रियलाइज करते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए थी. ऐसी कुछ चीजें हम बात करेंगे आज. ठीक है. नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट हाँ, let's move ahead and let's keep talking about it. Let me do my ritual first. I have to introduce myself, not because you guys do not know me, but yes, the video would always be there, the session would always be there. There can be more students who can watch this later. So I have to introduce myself. I am Gaurav Sharma. I'm an alumnus. I am Calcutta, as I just said. No bragging about this, honestly, but it is like setting the credentials. आपको जहाँ जाना है as a senior, as somebody who's experienced that, I can share my insights. That's the reason we always talk about that we've done this. So I keep writing as well. I'm a published author. You can read Chisel, paperback, or the Kindle versions and all are there. तो Kindle versions में वो मजा नहीं, वो बात नहीं होती ना. अभी ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कैट देना, ये करना है, वो करना है. बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन पढ़ने की आदत होनी चाहिए. बट वो जो खुशबू आती है पन्नों में से, है ना. गुड मॉर्निंग जपनीत. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है. ये हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी है. आई स्टार्टेड कॉलिंग इट कम्युनिटी. अदरवाइज चैनल, ग्रुप, ये वर्ड्स तो जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो हैं, लेकिन जो सोल वाइज देखेंगे ये हमारा एक कम्युनिटी है. मेरे नाम से है वो. अनअकैडमीज टेक्निकल थिंग इज लाइक इट हैज टू बी बाय माय नेम. अदरवाइज ये तो आप लोगों के नाम पे होना चाहिए. तो बहुत ही खूबसूरत सा माहौल होता है यहाँ पे. वाइब अच्छी है. आ जाओ, ज्वाइन कर लो. whoever is not a part of this. Let's be thankful to Unacademy that all these sessions are happening. These are all free sessions on YouTube and app also. At the same time, my suggestion, my strong advice is, guys, go for your Plus subscription or iConnect to give yourself structured preparation, and especially if you're looking for 21 or 20, 22 or 23 now. If 21, you can still make up your mind, go ahead. Still, we have a lot of time, but 22 and 23, you must go ahead.
plus subscription for MBA aspirants, 6 months, 12 months, 18 months. The fee structure is given here. When you go for long term, there are offers also. It becomes more cost effective as well. It's the best pick. Iconic, if you talk about, again, there's a fee structure given here, and you would see a kind of a difference in fee structure because it has that kind of a value. Why? It is more to do with the, I could understand that, sort of. I'll come back to you. Don't worry. Let me just tell you guys a few things, and then we'll start talking. So live mentoring for MBA aspirants, basically, it's more to do with customized preparation, your own strategy, your doubts and everything. That is Iconic. So it has its own value. That is why the fee structure is also different. Usually this is the fee structure, and you can easily figure out that when you go for long term, it makes more sense. It is more cost effective as well. Okay. So always pick up as many months as possible. This is my code you must use to get 10% additional benefit. My students call me GS, who like me, and MBA is obviously the dream you've come for. Like, these are the new batches on your way. ऐसे बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं. अब आपको 22 प्रिपेयर करना है या 21 में प्रैक्टिस ड्रिल चाहिए, और you're aiming again 22, so accordingly refresher course or excellence course आप कर सकते हैं. This is CAT Iconic I was talking about, where I said that personalized learning experience, or you can discuss your doubts, clarify your own concepts, more to do with customized. Hanji. So Sana also joined now, sort of just joined. Hi Naman, hey Harsh. मैं उतने समझ नहीं पा रहा हूँ आपका नाम. अभय, सिद्धांत, ठीक है. बाकी सबसे तो काफी सारा हेलो हाय हो गया. ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बात करते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सिर्फ नाम दिखते हैं ज्वाइनिंग पे, बट दे डोंट टॉक. सो इट्स ओके. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्चुअल मीडियम, इसमें थोड़ा सा जो एक लिमिटेशन है, उससे हम लड़ सकते हैं. कीप रिस्पॉन्डिंग. ओके. हाँ जी. हाय मानसी. गुड मॉर्निंग. चलो, तो कहानी शुरू करें आज की. So again, I would say I keep the agenda very clear that this is a breather session. This is session 2 to getting to know more about CAT. हाँ, थोड़ा नजदीक और आना है, थोड़ा दोस्ती, थोड़ा प्यार जो CAT से है, उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी और नजदीक लाने वाला सेशन है. It's going to be a pure candid conversation. I'm not going to talk about any VARC or any quant or something. Okay. So let's see what all do we have to talk about today. So you can always throw yourself on the couch. You keep your legs up. You can actually attend the session, in the entire session, in a very relaxed manner. You can keep doing whatever you're doing. Just wearing your headphones or earphones or whatever. That's how you can listen to this conversation. Okay, but be ready to keep responding also. हाँ जी, बढ़े आगे. चलिए. So यहाँ पर हम थोड़ा सा concentrate करेंगे second round पे, that how what exactly second round is. ठीक है. Personality assessment round जो होता है second round, वो होता क्या है. ठीक है. चलिए. So before or rather the first thought of the day, for the first thing we need to talk about. So we use this word learning a lot. You guys are learners, and I call myself a learner. But what is learning? What exactly learning is? When we technically look at learning, the learning is divided into 3 types. One is conceptual learning, one is experiential, and the other is application. Okay. Conceptual, जैसे कि I'm talking about things right now. This is conceptual learning. You should read in a particular way, you should skim, you should scan. ऐसा RC में से बात करते हैं अपन. हाँ, वो learning क्या है? वो conceptual learning है. यानी कि for example, there is fire, and fire can burn you, you know it. But I just tell you, okay, you're a small kid, and I tell you that this is something called fire, and you should not go close to it. It can burn you. Now, what kind of a learning this is? Conceptual, theoretical. Okay. So one day you thought like, यार, ये सर ने कहा था ये फायर होती है, इसमें हाथ नहीं डालते हैं, हाथ जल जाता है, क्या करूं. And you wanted to experience it. You put your hand into it. अब हाथ जल गया.
ठीक है, टच होते ही बाहर आ गया वापस, इनफैक्ट कुछ पहुंच भी नहीं पाएंगे पास में, दिस फायर दैट्स हॉट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ लर्निंग यू जस्ट गॉट, व्हाट काइंड ऑफ अ लर्निंग यू जस्ट गॉट? टॉक 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 टॉक, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एग्जैक्टली सौरभ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो जब सिखाया था बोल के, यस सोनम एग्जैक्टली, जब बोल के सिखाया तो कॉन्सेप्चुअल हुआ, जब आपने खुद ने किया उसको तो एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, अब एक बात बताओ, कन्विक्शन ज्यादा कहाँ है? व्हेन यू डिड इट, when you heard, when you got this knowledge, and after that you got experience, conviction कब आया? कन्विक्शन कब आया कि ये नहीं करना है? आफ्टर एक्सपीरियंस, यस और नो? सो कॉन्सेप्चुअल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कन्विक्शन का फर्क होता है। जब जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं किसी चीज को तो कन्विक्शन आता है कि नहीं यार सही है। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऐसे होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट ये फायर है, ये हॉट है, इसमें हाथ जल जाता है, तो हमने दिमाग लगाया कि यार ये तो फायर तो कैन बी यूज टू बर्न समथिंग, राइट? और टू वो बर्निंग, बर्निंग से कुकिंग, कुकिंग से हम यहाँ पहुंचे, तो वो क्या हुआ, वो उसका एप्लीकेशन हो गया उस लर्निंग का। सो कॉन्सेप्चुअली, फिर एक्सपीरियंशियल, उसके बाद थर्ड आता है एप्लीकेशन। ठीक है, यही तीन चीजें तो करते हैं आप व्हेन यू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर योर वीआरसी और यू प्रिपेयर फॉर योर क्वांट और इन लाइफ एनीथिंग यू लुक एट इट, व्हाट डू? You learn conceptually, you experience it also, and then you start applying your learning. Okay, so there's a beautiful term I give you that's called TOT. What is TOT? That is taught. TOT is transfer of training. ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लर्निंग को, देन यू एक्चुअली बिकम नो मोर देन व्हाट यूजुअली पीपल आर। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत लोगों के पास होती है, एक्सपीरियंशियल भी कम लोगों के पास होती है, और उससे भी कम होते हैं जो नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। इट्स अ टेक्निकल टर्म। मैंने एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी शायद, आई डोंट रिमेंबर, आई कैन स्टिल नरेट यू। चिंपैंजी, चिंपैंजी स्टोरी। एक चिंपैंजी को एक छोटे से रूम में रखा गया और वहां पर ऐसा ऊपर की तरफ ना ऐसे बनाना सस्पेंड कर दिए। ही वाज हंग्री, बट समहाउ बनाना इतना ऊंचे थे कि वो उन तक पहुंच नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, वो कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा। उसके बाद इन दैट रूम ही वाज गिवन अ बॉक्स। ही वाज गिवन अ बॉक्स। उसने भाग के वो बॉक्स को उठाया, उसको खोलने की, फाड़ने की कोशिश की। ही ट्राइड टू टेयर इट ऑफ, नहीं कर पाया। उसने बॉक्स को रखा, उसके ऊपर चढ़ के फिर बनानास तक पहुंचने की कोशिश की, नहीं पहुंचा बनानास तक। इस बार उसने क्या किया, फिर से वहां पर एक बॉक्स मिला उसको, उसके रूम में, उसके केज में फिर से एक बॉक्स डाला गया। उसने भाग के वो बॉक्स उठाया, फिर कोशिश की, हाँ फिर कोशिश की उसको खोल सके, कुछ हो सके, बॉक्स के अंदर कुछ मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला, नहीं खुला वो बॉक्स। फिर उसने वापस उस बॉक्स को उस पिछले वाले बॉक्स के ऊपर रखा और कोशिश की टू रीच आउट टू दोस बनानास, बट ही कुडंट समहाउ, और ऊपर थे। थोड़ी देर बाद he was given one more box. This time he quickly ran to the box, picked it up, got it to those two boxes. उन two boxes के ऊपर उस box को रखा, then 1 2 3 step up किया, और उसके बाद ही reached out to those bananas and he had them. ठीक है, so he was learning by his experience. He was learning by his experience. It's not, still we've not reached down to application. Still on the experience part. अब क्या हुआ उसके बाद, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। दिस इज रशियन रिसर्च सेंटर एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्सपेरिमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, इस बार इस चिंपैंजी को माना गया दैट ही इज अ ट्रेन्ड चिंपैंजी, और एक बिल्कुल नूवो, एक नियो, एकदम नया वो चिंपैंजी एक और आया गया। नाउ दिस टाइम व्हाट दे डिड, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने ऐसा केज बनाया, बार्स वाला जो केज होता है यूजुअल, उसके बाहर उन्होंने बनाना उसको रख दिया। ठीक है, और वहां पर 3 स्टिक्स रख दी बाहरी, 1 2 3, छोटी बड़ी उससे बड़ी। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं बिहेवियर ऑफ द न्यू वन, ट्रेंड नहीं, जिसने पहले बनाना खा लिए हैं, वो बॉक्सेस वाले जिसके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, नॉट दैट चिंपैंजी, द अदर चिंपैंजी, द न्यू वन। उसने क्या किया, उसने बनानास तक पहुंचने की बहुत कोशिश की। He got frustrated also. He was hungry. He tried to break the bars and all, but he couldn't somehow. फिर उसने स्टिक उठाई, स्टिक से बनाना को अपने पास करने की कोशिश की, नहीं हुआ, उसने स्टिक फेंक दी। नाउ द सेकंड स्टिक वाज नॉट इन हिज रीच। सेकंड स्टिक उसकी रीच में नहीं थी। नाउ लुक एट द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट चिंपैंजी, जिसकी ऑलरेडी छोटी सी ट्रेनिंग हो गई थी, जो उसने सस्पेंडेड बनानास खाए थे। ठीक है,
अब इस चिंपैंजी का बिहेवियर क्या था, एक तो ये थोड़ा सा शांत था, इसने कोशिश की, है तो चिंपैंजी ना, इसने बार्स को तोड़ने की कोशिश की, ज्यादा परेशान नहीं हुआ। इसने बनाना तक पहुंचने की कोशिश की, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुआ ये। एंड ही डिड व्हाट, उसने छोटी वाली स्टिक उठाई, ट्राई टू रीच आउट टू बनानास, कुंड। उसने छोटी वाली स्टिक से बड़ी वाली स्टिक को अपने पास किया, बड़ी वाली स्टिक से और बड़ी वाली स्टिक को अपने पास किया, सबसे बड़ी वाली स्टिक से बनानास को अपने पास किया, और आराम से बैठ के बनानास खाए। सबसे पहले तो हमारे ट्रेंड चिंपैंजी के लिए थोड़ी सी तालियां, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि this chimpanzee was now applying his learning. This time, this chimpanzee was applying his learning. Could you see that? Huh? Conceptually, so you cannot teach, other than humans, anything you cannot teach to anyone. Experientially, he learned something, and out of his experience, he could apply. So, what do we call it? Transfer of training. Now, let me come to Aman, Mansi, Rohit, Akbar, Tahir, Sonam, Saurav. Let me come to you now. When you attend certain classes, conceptually you're being trained. When you solve certain questions, when you take mocks and everything, that is your experiential learning. When you this step, when you're able to apply whatever you learned, that is where taught comes, transfer of training. And if you can transfer your training, only then the results will come. सो ना तो किस्मत आड़े आती है, ना बहुत सारे 20 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है, एक इनफ अमाउंट ऑफ रीड स्टडिंग जरूरी होती है, बट कुछ लोग यहीं पर रुक जाते हैं। अब कैसे रुकते हैं, देखो, कॉन्सेप्चुअली कुछ कुछ चीजें पढ़ाई जा रही है, कुछ कुछ चीजें आपको समझ रहे हो, लेकिन उनके अलावा क्वेश्चन ज्यादा है लाइफ में। लेकिन सर ऐसे होगा तो वैसे कैसे होगा, फिर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। सो जब, अगर मैं सोचो जो भी यूनिट होगी लर्निंग की, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की, आई डोंट नो, मे बी 100x, इफ आई एम ट्राइंग टू पुट इन 100x इन यू व्हाइल टीचिंग यू, बट थोड़ा सा हम ऐसे ले जाते हैं कि नहीं और क्वेश्चंस करते हैं, बस छोड़ देना, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल अच्छा अच्छा सर अभी तो रिवाइज करा रहे हैं, तो कुछ कुछ बता रहे हैं कि वो आरसी में क्या करना होता है क्या नहीं, चलो ठीक है, फिर उसी के बीच में हमने व्हाट्सएप देख लिया, हाँ, फिर बीच में मम्मा ने आवाज दे दी, या कुछ और याद आ गया सुनते सुनते, तो कॉन्सेप्चुअल भी क्या 100x तक हम तक पहुंचा, यहीं पे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। देन व्हाइल एक्सपीरियंसिंग इट, क्या आप फुल एक्सपीरियंस ले रहे हो, क्या आप आरसी सॉल्व करते हो कुछ भी और नहीं सोच रहे हो, क्या आप क्वांट करते हो ये नहीं सोच, अगर आप ये भी सोच रहे हो क्या मुझसे क्या होगा, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर भी पाऊंगा, तो भी आप यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट 100%. You have to experience it despite you get the right answer or you get the wrong answers. That's a secondary thing. Only then you will be able to apply. और अगर एक बार ये 100% होगा तो एप्लीकेशन अपने आप 100% हो जाएगी. Does it make sense to you guys? If it doesn't make sense to you, think about it again. So, when you look at the second round, okay, तो क्या हुआ, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया हमारा. फर्स्ट राउंड है क्या, इफ यू टॉक अबाउट कैट, कैट की आप इतनी बात करते हो, बट कैट है क्या, कैट तो सिंपल स्क्रीनिंग है, कैट इज अ फिल्टर. छलनी होती है ना, छलनी, वो है भाई. 2 लाख एस्पिरेंट मेरे टाइम पे तो ज्यादा हुए थे, आपको पता है, अभी ऑलमोस्ट 2 लाख एस्पिरेंट्स आर देयर. नहीं मेरे टाइम पे नहीं, उसके और बाद में तो बीच में ज्यादा हुए थे, तो और काफी वापस से कम हुए हैं एस्पिरेंट्स. Otherwise, if you talk about 2 lakh aspirants taking this examination called CAT, Common Admission Test, ये तो just a screening round, because 2 lakh students, 2 lakh aspirants can't be interviewed by all these colleges. Can't be interviewed, can't be given some personality tools or exercises के भी पता लगाएं ये कैसे हैं, ये बिजनेस में अच्छे हो पाएंगे, ये बिजनेस मैनेजमेंट कर पाएंगे, इनमें लीडरशिप स्किल्स हैं नहीं है, ये सारा कुछ पता लगाना पॉसिबल नहीं है. सो सम काइंड ऑफ अ छलनी वाज रिक्वायर्ड, इसलिए कैट, आईपी मैट, स्नैप, ये सब तो छलनी है सिर्फ. इन 2 लाख में से अगर मैं कहूँ कि there are, let's say for example, 2,000 seats in all IIMs, बेबी सब मिला के 3,000 मान लेते हैं, एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है, मैंने नहीं देखा, ये चीजें तो गूगल पे मिल जाती. फॉर एग्जाम्पल अगर 3,000 सीट्स भी हैं, ठीक है, और 2 लाख एस्पिरेंट्स हैं, सो 1,97,000, ठीक है, तो हमको नहीं लेने. 1,97,000 स्टूडेंट्स का रिजेक्शन कैसे होगा, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 3,000 लोगों के लिए अगर मैं हर कॉल पे अगर मैं 10 लोग भी बुलाऊं तो 30,000,
ओके, 30,000 स्टूडेंट्स वुड बी कॉल्ड फॉर सेकंड राउंड, यानी कि 1,70,000 स्टूडेंट्स का क्या होगा? जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, अगली बार आना। यस और नो? अब मान लिया that CAT is not the best tool to figure out that these students who got rejected, क्यों? क्योंकि आईएम से निकलने वाले ही बिजनेस वर्ल्ड को रूल नहीं कर रहे, जैसे कि टेक वर्ल्ड को सिर्फ आईटी वाले रूल नहीं कर रहे, फैशन वर्ल्ड को सिर्फ एनआईएफटी एनआईडी वाले रूल नहीं कर रहे, लॉ वर्ल्ड को, लीगल वर्ल्ड को एनएलयू से निकलने वाले ही स्टूडेंट्स लीड नहीं कर रहे। ठीक है, सो ये बात तो पक्की है कि किसी ना किसी के अंदर कोई बिजनेस अक्यूमेंट, कोई लीडरशिप स्किल्स अमेजिंग होंगी होंगी। तो मान लिया CAT is not the best method to filter these students, but you tell me what can be the best method then? What can be the best method? There has to be some method, and there has to be and there has to be some restrictions in that method. Yes or no? So आज उन्होंने एक 10th स्टैंडर्ड तक जो आप सब कुछ पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि यार मुझे सिर्फ आईआईटीएंस नहीं चाहिए, मुझे मैथ्स वाले नहीं चाहिए, मुझे तो सब तरह के लोग चाहिए। तो उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे पेपर को डिजाइन करना शुरू किया, और ये पेपर आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर लेता है। दिस इज दैट काइंड ऑफ अमेजिंग एग्जामिनेशन। चलिए मान लीजिए अब कुछ भी होता है, फॉर 3,000 सीट्स 30,000 स्टूडेंट्स वुड बी कॉल्ड, लाइक फॉर एवरी 1 सीट 10 पीपल आर बीइंग कॉल्ड, राइट? यानी कि 27,000 लोग तो कॉल आने के बाद में भी वापस आएंगे। Yes or no? That's for sure. We're talking about IIMs only. We're not talking about premium B schools or some other good B schools also. अगर आप ऐसे बात करना शुरू करोगे, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 3,000 कॉलेजेस हैं जो डिग्री या डिप्लोमा, एमबीए या पीजीडीएम दे रहे हैं। पता है आपको? 3,000, और हर में ऑन एन एवरेज 150 सीट्स हैं, ऑन एन एवरेज। अगर मैं 150 सीट्स की बात करूं, सो नॉट लेस देन 4,50,000 सीट्स आर देयर इन इंडिया, और 2 लाख की तो एस्पिरेंट है। ऐसे एमबीए करने की बात करें तो कहीं से भी हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। दैट्स नॉट एन इशू। द इशू इज फ्रॉम अ गुड बी स्कूल, और लेट्स सी, यहाँ पर तो हम सिर्फ आईएम्स की बात कर रहे थे। यानी कि 27,000 पीपल विल कम बैक होम। यस और नो? जिस दिन आईएम का कॉल आएगा उस दिन तो बहुत खुशी मिलेगी, कॉल आ गया, कॉल आ गया, कॉल आ गया। यस और नो? और उस दिन एक नई टेंशन स्टार्ट होगी, जो टेंशन यहाँ जो अभी है उससे, हाँ, उससे बड़ी होगी, वो उससे बड़ी होगी। तो इसलिए उसको थोड़ा सा जानना, थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है? तो यूजुअली, ओके, सो व्हाट इज कैट? कैट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। अभी यहाँ पर आप फिल्टर में ऐसा छलनी में डले, यानी कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट में आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, इस एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करके आप रिजेक्ट नहीं हुए हो, दोनों में फर्क है। ठीक है? आप रिजेक्ट नहीं हो, आप आगे पहुंच गए। देन देयर विल बी अ सेकंड राउंड। When we talk about the second round talks about, I'm not saying all this would be used, but you can be assessed. Your personality can be assessed by group discussions or personal interviews, or extempores can also be there. Presentations can be there. Psychometric tests are there. Written examination, written ability tests are there now. So any ways possible, your personality can be assessed, right? Does it make sense? Now, when you talk about this story, now you see that the word which is used, that is assessment. What word are we using? Assessment. We are not using a term called test. Test nahi hai ye. It is not a personality test. It is personality assessment round. Now, what is assessment and what is test? भाई अगर स्वप्निल का या अमन का या रोहित का पर्सनालिटी टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी टेस्ट हुआ, अब पर्सनालिटी टेस्ट में जैसे मान लो मेरा पर्सनालिटी टेस्ट हुआ और मेरे 10 में से आए 0, इसको टेक्निकली इसका मतलब क्या हुआ? पर्सनालिटी टेस्ट में 0 आने का मतलब हुआ नो पर्सनालिटी। यस और नो? पर्सनालिटी टेस्ट में अगर 0 आ रहा है तो मतलब नो पर्सनालिटी। हाय विकी, गुड मॉर्निंग। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। सो पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं होता है, पर्सनालिटी का हमेशा असेसमेंट होता है। अब असेसमेंट का मतलब ये है कि मुझे मेरी जॉब के लिए, ठीक है, ये एक्स कैंडिडेट है, ये मानसी है, ये एक्स कैंडिडेट है, इसके अंदर इसका मुझे पर्सनालिटी असेसमेंट करके देखना है कि ये 10 एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हैं या नहीं। ठीक है? ये 10 एट्रीब्यूट इसमें अंदर हैं या नहीं। अब मुझे मान लो 10 में से 10 मिले तो मानसी का स्कोर क्या हुआ? 10 on 10, राइट?
अगर 0 मिले तो मानसी का स्कोर हुआ 0 on 10. नाउ दिस इज पॉसिबल बिकॉज मैं उसका पर्सनैलिटी असेसमेंट कर रहा हूं दैट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड डज शी हैव दैट और नॉट. तो यहां 0 भी आ सकता है क्योंकि असेसमेंट था. यहां रिजेक्शन नहीं हुआ है मानसी का, यहां सिर्फ हमने ये बात देखी है कि मानसी सूटेबल है या नहीं है for this job. That doesn't mean that Mansi is not suitable for anything in the world. But Mansi might not be suitable for this particular job or this particular study or this particular career. समझ में आती है ये बात? Do you understand this? अच्छा, अपना जेस विकी आ गया. विकी, मैंने पर्सनली कभी आज से अपनी वैसे भी छुट्टियां, आज असेसमेंट राउंड होगा उसके बाद 3-4 दिन छुट्टी रहेगी. आई विल बी आस्किंग, मैं आज आकांक्षा से पर्सनली बोलता हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ जी. तो असेसमेंट वर्ड समझ में आया. सो नाउ अंडरस्टैंड दैट कैट वुड बी अ रिजेक्शन राउंड. द सेकंड राउंड वुड बी सिलेक्शन राउंड इन व्हिच योर पर्सनालिटी वुड बी assessed that you the right person for this, suitable for this career, for this college or not. Okay. अच्छा, अब ये सुटेबिलिटी वाला जो केस है वो भी डिमांड एंड सप्लाई का हो गया. सप्लाई ज्यादा है तो हो सकता है आप सुटेबल हैं, लेकिन एक है वो आपसे और बेटर है, या आप किसी से बेटर हैं. तो सूटेबल ज्यादा लोग भी हो सकते हैं बट सीट्स लिमिटेड है. डिमांड एंड सप्लाई रूल आ गया, राइट? चलो विकी, यहाँ पे काफी लोग हैं जो तेरी हेल्प कर सकते हैं. मानसी विल बी हेल्पिंग यू आउट, डोंट वरी. चलिए अब अपन एक बार वापस से कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं. हाय, अच्छा, गुड मॉर्निंग, आई डिडंट सी यू जॉइन. हाँ, नाउ let's begin and see. Let's have the overview of what is actually the assessment round, what exactly the panel is looking for, right? Now before we move ahead, try and understand there is something called clarity of goals. Clarity of goal kya hai? What so may I ask you, like, do you know the difference between goal and objective? Can somebody tell me the difference between goal and objective? Those who are joining late, this is purely a candid conversation. Purely candid conversation. We're just talking about anything here and there around the personality assessment round, the second round at these schools. So who will tell me the difference between goal and objective? You're free to come up with whatever comes to your mind. Say whatever you want to say. Goal is to focus on one thing. Hi Prahlad, hey Kishle. Goal is to focus on one thing and objective is to focus on many things. Goal is based on destination. Okay, yeah, okay, makes sense. Comparative study करके बताओ, गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है? Oh, quick. Preeti, goal is long-term, objective is short-term achievement to reach end goal. Goal, sir, EC. What is EC? Nahin, Preeti. I wanted to listen to that. So Preeti says goal is long-term, objective is short-term. Number of students, by my experience, I tell you, I have traveled. I mean, I've been taking, before COVID, I've been taking sessions in Delhi University, number of colleges of Delhi University. I went to IITs. My last session was in IIT Gandhinagar. For 2 days I was there. And majority objectives make us reach our goal. Exactly, Dhruv. समझाता हूँ इसको. Goal is that thing for which we are having clear idea about one thing. So, okay, makes sense. ठीक है. But now, सुनना और समझना. मैं इतनी जगह ट्रैवल किया मैंने. It's my experience is majority people say goal is long term and objective is short term. जो ध्रुव ने कहा वो मैं समझाता हूँ अभी. सौरभ, आप भी बिल्कुल गलत नहीं है. हम गलत, देखो इन चीजों में हम गलत तो होते ही नहीं. हमारा एक अपना ओपिनियन होता है, लेकिन ओपिनियन भी थोड़ा सा पर अपने को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, है ना? सो देखो, दोनों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस नहीं होता प्रीति. ये अपने को एक कॉमन सा फील है लोगों में. ये गलत समझने सबने समझा हुआ है. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. मेरा काम क्या है, सबको बहुत सिंपल करके समझाना. गोल है व्हाट, ऑब्जेक्टिव है व्हाई.
गोल है व्हाट, ऑब्जेक्टिव है व्हाई। राइट ध्रुव, यू वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। इसको और सिंपलर कर दिया अपन ने। क्या करना चाहते हो वो गोल है, ठीक है। अभी फोकस वगैरह सब तो इंग्रेडिएंट्स हो गए ना उसको गोल को पूरा करने के लिए। यस नो, चाहे फोकस हो गया, चाहे डिटर्मिनेशन हो गया, चाहे डेडिकेशन हो गया, ये सब तो वो मसाले हो गए जिससे ये गोल पूरा होगा। पर गोल क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ओके, ऑब्जेक्टिव है व्हाई डू यू वांट इट। नाउ हैव यू वॉच्ड दिस अमेजिंगली ब्यूटीफुल फिल्म चक दे इंडिया? यू वॉच्ड इट? हाँ या ना? हम्म। सो मैं यूजुअली चक दे का एक पूरा सेशन करता हूँ 3 hours का। I divided that film into 21 short scenes, and I do a management leadership session in these schools usually. We watch certain scenes and we talk about this, and then a few exercises also. अभी एक बार उसको साइड में रखते हैं। जब ये आपका when you start going to colleges and everything, you can always ask me. I'll definitely come and join you in your college only. So, but all these sessions, no, online possible नहीं हो पाते हैं ये sessions। ऑनलाइन तो एकेडमिक सेशंस बहुत अमेजिंगली हो जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। चलो खैर, चकदे पे आते हैं। तो चकदे में देयर आर 11 प्लेयर्स एंड 1 कोच, 12, राइट। नाउ ऑल दीज 12 पीपल, दे हैव कॉमन गोल। उन सबका गोल क्या है? एब्सोल्युटली कॉमन, सबका एक ही गोल है, दैट इंडियन टीम शुड विन द वर्ल्ड कप। गोल सबका यही था। द कोच ऑल्सो वांट्स द टीम टू विन द वर्ल्ड कप, कोमल चौटाला ऑल्सो वांट्स टू विन द वर्ल्ड कप, एंड प्रीति सबरवाल ऑल्सो, एंड फ्यू मोर पीपल। यस और नो? लेकिन सबके रीजंस अलग अलग हैं, सबके रीजन अलग अलग हैं। कोच को अपनी कोई इज्जत पानी है, किसी को अपने हस्बैंड को दिखाना है, किसी को अपने बॉयफ्रेंड को कुछ कन्वे करना है। इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट ओनली, इट इज अबाउट योर ओन ड्रीम एंड एम्बिशन। तो सबके रीजंस अलग अलग हैं। किसी को गांव में, किसी को विमेन एम्पावरमेंट है किसी के लिए, राइट। तो सबके रीजंस अलग अलग हैं, लेकिन सबका गोल कॉमन है। यस और नो? आती है बात समझ में? देखो, तभी तो जब भी आप देखोगे कि जब कॉमन गोल्स होते हैं, जब कॉमन गोल्स होते हैं तो बॉन्डिंग बेटर होती है। एक बात बताओ, आप डेली क्लास अटेंड करते हो। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ डेली यूट्यूब पे रिवीजन बैच में आते हैं, कुछ बिगिनर्स बैच में आते हैं। डेली आप उस समय अपना टाइम निकालते हो और अपनी क्लास अटेंड करते हो क्योंकि हमारा गोल कॉमन है। उस एक पॉइंट पे हमारा गोल कॉमन है। अगर हमारा गोल कॉमन नहीं होता तो क्या हम डेली मिल पाते, बात कर पाते? करते। आप देखना, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आप कहोगे कि सर मैं तो ना, फिर भी मेरे को जब भी टाइम मिलेगा ना सर, आई कीप कमिंग टू द क्लासेस में, तो ऐसा नहीं होता, मेरे को बहुत मजा आता है सर, ये है वो है। लेकिन उस दिन आपका गोल बदल चुका होगा। मेरा गोल हो सकता है मैं बैच में हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इफ आई एम टीचिंग आई विल बी टीचिंग मोर स्टूडेंट्स। तो मेरे मेरे लिए स्वप्निल, अच्छा, सोनम सब बदल जाएंगे। वहां पर कुछ और लोग आ जाएंगे, उनका गोल और मेरा गोल कॉमन हो गया कि उन्हें कैट क्रैक करना है, मुझे चाहिए कि वो कैट क्रैक कर ले, वापस से जुड़ गए। आप आओगे, बैठोगे, 2 बार पूछोगे, मैं कहूंगा बच्चे 1 मिनट रुको जरा, मैं एक बार इनको ही समझा दूं। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज गोल बदल जाएंगे तो लोगों में डिस्टेंसेस ऐसे नहीं आते हैं। जब जब गोल कॉमन होता है तब तक बॉन्डिंग बेटर होती है, ठीक है। यू वॉन्ट टू डू वेरी गुड इन योर लाइफ, योर फादर ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू डू वेरी गुड इन लाइफ। देयर इज अ कॉमन गोल, ही हैज हिज ओन रीजन, you have your own reason. Yes or no? The family, what is family? Family is one entity जिसका गोल कॉमन है ना। सो गोल कॉमन होना बहुत जरूरी होता है। और गोल्स, अब जैसे अन अकेडमी हैज अ गोल दैट यू गाइस क्लियर कैट, दे हैव देयर ओन रीजंस व्हाई। योर गोल इज टू क्रैक कैट, यू हैव योर रीजंस व्हाई, बट कॉमन हो गया एंड यू कम टुगेदर। गॉट दिस नाउ? अब ये तो हुआ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। पर एट द सेम टाइम द पॉइंट इज, गोल क्या होता है, गोल और ड्रीम में एक छोटा सा फर्क होता है। गोल और ड्रीम में एक छोटा सा फर्क होता है। ड्रीम तो क्या करते हैं हम, खुली आंखें, बंद आंखें, वो तो सब एक फिलोसफी है। टेक्निकली इफ यू लुक एट इट, आपने कहा यार देखो, सोचो, सोच के देखो, आप अपनी चेयर पे बैठे हुए ऐसा टिका के बिल्कुल पीछे यूं, ठीक है, दूसरी चेयर में अपने पैर रखा, और कोई दोस्त कह रहा है कि यार तो फिर क्या चल रहा है आजकल? अरे यार बस कुछ नहीं, एक बार जरा
आईएम सिलेक्शन हो जाए यार, एक बार आईएम अहमदाबाद की, कलकत्ता की, बैंगलोर की ऐसी कोई टी शर्ट पहन के और फिर मैं निकलूं कॉलोनी में। हम्म। ये जो आप एक चेयर पे बैठ के दूसरी चेयर पे आपने पैर रख के ऐसा बोला, इसे कहते हैं ड्रीम। व्हाट डू वी कॉल दिस? ड्रीम। टेक्निकल, ओके, नो फिलोसफी, इट्स ऑल टेक्निकल। ड्रीम। अब इस ड्रीम में आपने एक प्लान इंड्यूस किया। हाँ, अभी फरवरी चल रहा है या अप्रैल चल रहा है, नवंबर में कैट होगा, कैट के थ्रू आईएम में जाते हैं, एंड देन यू स्टार्टेड स्टडिंग, यू स्टार्टेड अटेंडिंग द क्लासेस। पापा ने कहा कि भाई शादी में चलना है, अक्टूबर सितंबर आ गया है, 4 तारीख को शादी है, चलेंगे। आपने कहा अच्छा पापा कब चलेंगे? उन्होंने कहा सेकंड को चलेंगे। फिर कब आएंगे? तो मेरी आवाज में एको आ रहा है, ताहिर को मेरी आवाज में एको आ रहा है। आप सबको मेरी आवाज में एको आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, ताहिर एक बार आप चेक करो बेटा, बाकी सब लोग नो बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो पापा ने कहा कि बेटी 2 सितंबर को चलेंगे और 5th को आ जाएंगे। आपने कहा सर 2nd को जाएंगे, 5th को आएंगे, दिन में क्लास वहां पर होती है, वो भी पढ़ना होता है। आपने कहा नहीं, मेरे लिए नहीं हो पाएगा, मेरे प्लान के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा शादी अटेंड। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? योर ड्रीम हैज गॉट अ प्लान, नाउ इट हैज बिकम व्हाट? नाउ इट हैज बिकम व्हाट? गोल। अब आप क्या हुआ, आपने जैसे ही पापा ने कहा कि भाई शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, ऐसा कुछ करके 4 दिन बाहर जाएंगे, तो आपने फटाफट से अपना बैग पैक किया और आपका एकदम माइंड जो है वीआरसी का क्वेश्चन करते हुए चल रहा है कि नहीं और कौन से, मतलब मैं एक बार वो वाली अपना जैकेट ले लेता हूँ, वो ब्लेजर ले लेता हूँ, और वो तो वो जो जो पिंकी चाची के वो दूसरे दूसरे घर की वो जो लड़की आई थी, मतलब उससे इस बार वापस मिलेंगे, बात करेंगे। ये जो हो रहा है, फिर वहां पहुंच भी गए अपन शादी में, फिर वहां पर भी अपन एक चेयर पे बैठ के दूसरी चेयर पे पैर रखते हुए, जब वो पिंकी चाची की दूसरी बुआ की लड़की जो गुड्डी थी, फिर उससे बात करते हुए जो अपन ने बोला कि मेरा मेरा सपना है, मैं आईएम जाना चाहता हूँ। तो अभी भी जो गोल था ना, वो गोल नहीं बना था, वो एक्चुअली अभी भी सपना ही था। क्योंकि सपना देखना बहुत आसान काम होता है। उस सपने में प्लान मिलाकर, उस सपने को पकड़ा, उसमें प्लान डाला, उससे ऐसा घुमाया, फिर वो गोल बनता है। बट द प्रॉब्लम इज हम लोग गोल सेट नहीं कर पाते। हमें एग्जैक्टली या तो पता नहीं होता हम क्या करना चाहते हैं, और अगर हमें पता भी होता है, लाइक आई समहाउ, मैं थोड़े एक दो पॉइंट्स अगेंस्ट बोलूंगा, सर्टेन फिल्म्स लाइक थ्री इडियट्स एंड ऑल के, जो इस चीज को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं दैट यू हैव टू हैव अ पैशन और समथिंग। नहीं, यूं बहुत ज्यादा पैशन होने की हर किसी को यूं मैंडेटरी नहीं है। एक बेसिक इंटरेस्ट बहुत होता है, एक बेसिक इंटरेस्ट बहुत होता है। जब पैशन लेवल पे कोई चीज होती है ना, तो उसको पता नहीं करना पड़ता, वो अपने आप पता हो जाती है, और अपने आप कुछ और दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो जो लोग ढूंढ रहे होते हैं मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, बहुत सिंपल सा एक मैं ज्ञान दूंगा आप लोगों को। आई मीन यू मे कॉल इट अ फिलोसफी और समथिंग, बट देयर आर टू वेज टू लिव लाइफ। वन इज डू व्हाट यू रियली वांट टू डू, one is do what you really want to do, and secondly, whatever you're doing, do it the way you can't do better. या तो समझने की कोशिश करना, देखो कि या तो एक्चुअली वो करो जो करना चाहते हो, या फिर जो कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो उसे चाह लो, डेवलप लव फॉर दैट एंड देन डू इट प्रॉपर्ली। अपने आप हो जाएगा। ये बॉलीवुड स्क्रिप्ट है कि प्यार होता है, नहीं प्यार किया भी जाता है, यू हैव टू, यू कैन ऑलवेज यूज इट एज अ वर्ब। ओके, इफ यू कीप डूइंग समथिंग यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट आल्सो। ओके, so maybe a year back I was not ready to teach online, because for me teaching is like a kind of a romance. I would go to colleges, universities, I would meet people there. मेरे 2 days के 20 hours के regular sessions होते थे, and people used to love it, like I we used to enjoy it a lot. तो बहुत टाइम तक I kept on saying कि नहीं, I would not want to teach online or something, but sometimes you have to do something which you do not want to do, but you have to. And I got into it, and then see what happens. Then I meet Mansi, Echa, Vicky, Rohit, Dhruv. Now there are people who come and attend classes every day, and we have a bond without seeing them. And I personally still, I personally started feeling what I used to feel when I was, when I used to go to offline sessions. Right? They cannot match because they're different. They cannot match because they're different. Like whenever we accept the difference, we can always see the best of that version also. अब now, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ. If I talk to Dhruv, let's say, Dhruv, where are you from?
वेयर आर यू फ्रॉम ध्रुव? लखनऊ। अब मैं तो लखनऊ गया ही नहीं आज तक, मैं तो आज तक लखनऊ नहीं गया, और पता नहीं कभी आई एम लखनऊ या फिर कहीं पहुंचते या किसी और कॉलेज में होते तब कहीं अगर ध्रुव वहां मिल जाता तो मिलते। बट यू नो, कोई लखनऊ से है, कोई बिहार से है, कोई रांची, कोई कोई कहां से है, कोई कहां से है, एंड वी कैन मीट। सो व्हाट एल्स वी वांट इन लाइफ? if actually teaching is your romance, and meet people, right? So but problem is goal की setting, goal की clarity होना बहुत important है। You left। सो विकी ने क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब मैं दूंगा नहीं दूंगा, अभी बाद में दूंगा शायद, लेकिन एक बार बताता हूँ आपको। विकी सेज कि आई लेफ्ट माय जॉब फॉर कैट एंड नाउ आई एम कंटिन्यूअसली गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, सो व्हाट शुड आई डू? ये तो होगा ही ना विकी, सवाल का जवाब आपके हाथ में है, आपको खुद को पता है। क्या आपने वो जॉब इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो खराब था? When you get married to someone, you do not get married to someone because you had no option. You get married out of, so to someone who you see the best out of all, and you go ahead. Now that doesn't mean that the options are, nowhere. So understand that. ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब जैसे कि एक छोटी सी चीज होती है, we all talk about one thing called confidence. All of us talk about confidence. So Tahir, Dhruv, Mansi, Echa, Vicky, and and more students. What do you think? What is confidence? Is it a cause or an effect? What do you think? ये एक आउटपुट है या एक इनपुट है? ये कॉज है या इफेक्ट है? अच्छा ने कहा इफेक्ट, सोनम ने कहा बोथ, ध्रुव ने कहा इफेक्ट। आप दोनों ही गलत नहीं है, ये बोथ भी हो सकता है, ये इफेक्ट भी हो सकता है। हाँ, ये इनपुट नहीं होता, यानी कि कॉज नहीं होता। दैट्स वंडरफुल। नहीं अकबर, ये कॉज और इनपुट नहीं होता। मैं बताता हूँ, देखो कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट होता है। ये बाय प्रोडक्ट होता है जो प्रोड्यूस होने के बाद यूज हो जाता है, लेकिन जो प्रोड्यूस होने के बाद यूज होता है, लेकिन ये एक इनपुट नहीं है, ये कॉज नहीं है, ये इफेक्ट है। हाउ? छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पैराजम्बल्स करते हो, बहुत सारे पैराजम्बल सॉल्व करते हो क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम, जब पैराजम्बल सामने आए तो कॉन्फिडेंस फील हो, यस और नो, राइट? सो जब बहुत सारे पैराजम्बल्स कर लेते हो तो करने के बाद एक नया क्वेश्चन सामने आता है तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट। सिंपल है ना? ग्रुप डिस्कशन तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये था एक्सपीरियंस है वो कॉन्फिडेंस। जब हम पैराजम्बल की बात की या मॉक देते हैं तो हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं। ये कॉन्फिडेंस किससे आता है? एक्सपीरियंस से। अब बहुत सिंपल सी बात है, इफ आई मेक यू सिट फॉर एन इंटरव्यू लेट्स से, और अगर आप प्रॉपर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर कर आए हो, ठीक से आपने प्रिपेयर किया, अपने सब्जेक्ट्स ब्रश अप किए, अपना करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा, उस कंपनी के बारे में या कॉलेज के बारे में पढ़ा, सो वुड यू फील मोर कॉन्फिडेंट और लेस कॉन्फिडेंट? मोर और लेस? मोर, राइट? सिंपल है ना? क्यों? क्योंकि यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, सो यू फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट। करेक्ट? कॉन्फिडेंस किससे आया? नॉलेज से आया। अच्छा, आपको पता है कि आप अच्छा कर पाओगे, आप इस आपने अपनी सूटेबिलिटी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जब आपने असेस किया तो आपको लगा कि यस यू आर अ राइट फिट, तो वो जो सेल्फ अवेयरनेस है खुद के बारे में, दैट्स मेकिंग यू मोर कॉन्फिडेंट, राइट? yes or no? If you have a very clear reason in your mind to get that job or that admission, that motive, that objective, that reason very clear in your mind, that will give you more confidence. You know that you can communicate well, you can express your points well, you'll feel more confident. आती है बात समझ में? So confidence is always an output, it is not an input. You cannot induce confidence कि भाई कल से मैं confidently yes I'll do it, no. जैसे मोटिवेशन, गधे जो होते हैं ना, गधे गधे एक नंबर के गधे वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन ना बड़ी स्टूपिड सी चीज है। इंस्पिरेशन होती है ह्यूमंस के लिए। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ऐसे जो पेपटॉक होती है ना, वो मोटिवेशन नहीं है कि भाई आसमान फाड़ दो, ऐसा पत्थर उछालो, ऐसा छेद कर दो आसमान में, ऐसा नो।
एक मूवी देखा, मूवी के बाद उठ के आपको लगता है कि बस कम ऑन, यस आई विल गेट अप अर्ली, ऐसा 4 बजे उठूंगा मैं कल से मैं भी। ये दिस इज ऑल डोंकी थिंग, क्योंकि ये 2 दिन में खत्म हो जाती है, हाँ या ना, एक्सपीरियंस हुआ होगा लाइफ में। हम्म ये 2 दिन में खत्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये टेक्निकली रॉन्ग है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, हम खुद पे ले लेते हैं इस चीज को, हम इसको खुद पे ले लेते हैं कि यार मैं ना सोचता हूँ फिर करता नहीं हूँ। इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज नॉट अबाउट यू बेटा। अगर मैं भी सोचता हूँ इस तरह से, मुझे भी पेप टॉक मिलेगी, मैं भी ऐसा फील करूंगा, तो मैं भी यही करूंगा, मैं भी छोड़ दूंगा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद। तो यूजुअली इसको अपने ऊपर मत लो, डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस बाय दैट। देखो मोटिवेशन कैसे होता है, मोटिवेशन आता है छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे रिजल्ट्स जब आते हैं। हम्म? अच्छा एक बात बताओ, जैसे वीआरसी सेशंस होते हैं, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दोस वीआरसी सेशंस एवरी डे, एंड कुछ आते हैं कुछ गायब हो जाते हैं, राइट? कुछ आते हैं कुछ जो कंसिस्टेंट हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑल क्लासेस अटेंड, ये वो एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कराया था नहीं कराया था, तो स्टूडेंट्स बता देते हैं सर ये तो कराया हुआ अपन, बिकॉज दीस पीपल आर अटेंडिंग द क्लासेस एवरी डे, नाउ दे आर इंप्रूविंग। नाउ मोटिवेशन और कैसे आता है, हर बार टीटा क्वेश्चन गलत होता था, एक दिन वो टीटा क्वेश्चन सही हुआ, एकदम अच्छा सा फील आता है अंदर, है ना? वो अच्छा सा फील क्या कहता है, जब भी नेक्स्ट टाइम वो टीटा सामने दिखेगा, चलो यार ट्राई करते हैं, है ना, लेट मी डू इट। सो छोटी छोटी सी जो विन होती है ना, स्मॉल वाली, वो आपको एक पुश देती जाती है, और फिर वो धीरे 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 बड़ी होती जाती है। सो बहुत छोटे छोटे टारगेट बना के जब उनको अपन पूरा करते जाते हैं, तो वहां मोटिवेशन आता है। आपको कल 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको आपको लगता है दैट यू नो यू बीन गेटिंग अप एट 7:30, कभी 7:45, कभी ये कभी वो, यू कैन जस्ट मेक इट 6:30 6:45 एंड डू इट लाइक चल 15 मिनट्स आई विल गिव माई सेल्फ टेक रेस्ट, और व्हाटएवर, उठने में थोड़ा मुश्किल होगा, 7 o'clock आई विल बी आउट ऑफ बेड। सो आपने एक अचीवेबल अगर टारगेट बनाया, एक मेजरेबल टारगेट बनाया, अगर आपने 7 days उसको पूरा कर लिया, छोटे छोटे, गिव योर सेल्फ कि मैं वेंसडे छुट्टी करूंगा और संडे छुट्टी करूंगा, बहुत छोटे 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 एग्जाम्पल्स हैं ये। सो अपने आप धीरे धीरे इट विल कम ऑन ट्रैक। सो जो वो सिग्नेचर वाला है ना, सिग्नेचर का है किसका है कि स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, वो एप्ट है, बिल्कुल एप्ट है। तो मोटिवेशन गधों के लिए होता है, ध्यान रखना, और गधे आप नहीं हो, मैं नहीं, हम सब हैं, अगर हम मोटिवेट हो रहे हैं तो ऐसा है। मोटिवेशन डिराइव होना चाहिए धीरे 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 धीरे, पर्पस क्लियर होना चाहिए, ठीक है बड़े। फिर हम बात कर रहे थे जैसे इसमें नॉलेज की, कि नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। नॉलेज होती कौन सी है, व्हाट इज नॉलेज बेसिकली, जो एक असेस भी होगी सेकंड राउंड में, तो नॉलेज है क्या? सबसे पहले होती है नॉलेज जिस भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा बीटेक स्टूडेंट है, आपने कहा आप इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं, आपने कहा आपको वर्क एक्स है, तो जो भी आप बोल रहे हैं कि जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं उसकी नॉलेज, आप खुद बताओ। मानसी, अगर आप एक कंपनी के एक लीडरशिप पोजीशन में होते और अगर आपसे कोई इंटरव्यू के लिए आता बात करने, और वो कहता कि मैं इंजीनियर हूं, तो क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करते उससे कि उसको इंजीनियरिंग नॉलेज होगा, उसके उसके ब्रांच में उसे पता होगा? सब कुछ नहीं पता होगा, बट एज अ फ्रेशर उसको पता होना चाहिए, यस और नो, राइट? तो फिर एक बात बताओ, जब आपसे ये कहा जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वट एवर यू डेड, उसमें आपको एक दो सब्जेक्ट आपके फेवरेट या फिर आपका एक क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट व्हाट यू नो इफ देयर आर क्वेश्चंस ऑन योर सब्जेक्ट यू शुड आंसर। अब इसमें बताओ क्या फंडामेंटली प्रॉब्लम है? सो ईदर वट एवर द वर्क यू डन, उसका बारे में नॉलेज, या जो एज अ फ्रेशर अगर आप आ रहे हो और आप कहते हो कि मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ, तो सोशल साइंस में से पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा है, तो हाउ पॉलिटिकल साइंस इज यूजफुल, हाउ इट कैन मेक मोर सेंस टू एवरीबडी, एंड व्हाट एग्जैक्टली पॉलिटिकल साइंसेज, एंड पॉलिटिकल साइंसेज में भी कौन सा आपका फेवरेट है, उसके बारे में आप क्यों बात नहीं करोगे? फंडामेंटली करेक्ट है ना आपसे एक्सपेक्ट करना, राइट? सेकेंड काइंड ऑफ नॉलेज है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी खुद की स्ट्रेंथ, अपनी खुद की वीकनेसेस, अपनी हॉबीज। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपकी हॉबी फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी है, सो वहां पर आप गए बी स्कूल एडमिशन के लिए, तो वहां पे फोटोग्राफी थोड़ी करवाएंगे वो आपसे, वहां पे फोटोग्राफी थोड़ी कराएंगे आपसे वो। देन व्हाई आर दे एक्चुअली आस्किंग यू क्वेश्चंस ओवर फोटोग्राफी?
Why are they actually asking you questions over political science if you're a political science student? Why do they ask you like कि DSLR का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड एग्जैक्टली अगर फोटोग्राफी आप करते हो तो DSLR का फुल फॉर्म क्या है, और फुल फॉर्म अगर ये है भी कि डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताओ. व्हाई आर दे आस्किंग यू ऑल दैट? आर दे एक्सपेक्टिंग दैट यू विल कम टू द कैंपस एंड यू विल बी डूइंग देयर फोटोग्राफी? It is very simple. It is very, very simple. It is sense of commitment. जो चीज आपने अपने लिए उठाई थी, मेरी सेल्फ अवेयरनेस ये है, मैं इंसान ऐसा हूं, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, मेरी हॉबी ये है. सो हॉबी किसी ने आपको दी थी क्या? एग्जैक्टली स्वप्निल, एग्जैक्टली कि आप अपने इंटरेस्ट की तरफ डिटरमेंट हो या नहीं. यार अगर आप अपने इंटरेस्ट की तरफ डिटरमेंट नहीं हो तो अभी जिस एडमिशन के लिए आप आ रहे हो वहां क्या डिटर्मिनेशन होगा, वहां कौन सा कमिटमेंट आएगा? अगर वहां कमिटमेंट नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर गोद थोड़ी लेना है आपको कॉलेज को. थैंक यू वेरी मच, जाओ. सिंपल है ना. अब बताओ अगर कहीं भी फंडामेंटली कुछ रॉन्ग है तो बताओ कि नहीं नहीं सर ये तो इनका तरीका ही गलत है, ऐसे थोड़ी होता है. मतलब मैं क्या होगा कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में भी नहीं जानूंगा, अपनी अपनी हॉबीज के बारे में भी नहीं जानूंगा. अपना एडमिशन की बात चल रही है आज, कॉन्टेक्स्ट किस बात का एडमिशन का, तो मुझे एमबीए क्यों करना है, मुझे इसी कॉलेज से क्यों करना है. अगर मेरे थॉट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है इस बारे में तो भी मेरे को एडमिशन दो. हाँ, जनरल अवेयरनेस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, कोविड है, इकोनॉमिक्स है, बेसिक अपनी करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वो पता होना चाहिए. हाँ, इलेक्शन से कैसे होगा, कौन सी गवर्नमेंट आएगी. अब जैसे मोदी जी ने कहा कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब अपने को इन्वेस्ट करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो कम्युनिकेशन डेवलप होगा, कम्यूटेशन डेवलप होगा, तो अपने आप इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगी. क्यों नहीं हो आप इसके बारे में नॉलेज? नहीं नहीं सर मुझे क्या है, ये भी नॉलेज नहीं है. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने जा रहे हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हो रहे हैं, बिजनेस वर्ल्ड में इंडस्ट्री कौन सी ग्रो कर रही है, आईटी इंडस्ट्री ने कितना ग्रो किया है, सारी जॉब वहीं पर लग रही हैं. सर्विस इंडस्ट्री पूरी तरह हर्ट है आफ्टर कोविड, इवेंट्स खत्म हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स खत्म हो गए हैं, लेकिन डिलीवरी चल रहा है. जोमेटो आया, जोमेटो ने लिस्टिंग किया, अपना आईपीओ निकाला. क्यों पता नहीं है? नहीं नहीं सर मुझे क्या है, कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे एडमिशन भी चाहिए, उसके बाद मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी चाहिए, और फिर मुझे 50 लाख का पैकेज भी चाहिए. नहीं नहीं आए मुझे कुछ नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता. वो सब तो मतलब छोड़ दो सर, मेरे को ये चाहिए. अरे भाई ये तो आउटपुट है ना, इनपुट तो सारा आपके पास है. अब मैं इनपुट डालूंगा नहीं लेकिन आउटपुट मुझे पूरा चाहिए. बताओ, इसे नॉलेज कहते हैं, ये नॉलेज आपको चाहिए. ठीक है. अब जैसे रीडिंग की बात आती है, रीडिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि सर रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है सर, एक्चुअली नॉलेज नहीं है सर. एक्चुअली फिर इसलिए रीडिंग भी नहीं करते. एक्चुअली क्या, रीडिंग नहीं करते हो इसलिए इंटरेस्ट नहीं है. और इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि नॉलेज नहीं है. और नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि रीडिंग नहीं करते हो. तो ये फिर चक्का घूमने लगता है. और फिर रीडिंग की बात भी आती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ कैट से एसोसिएट कर देते हैं हम. कैट में वीआरसी आएगा, वीआरसी में आरसी आएगा, आरसी अपने को थोड़ा उसमें मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो चलो रीडिंग करते हैं. अब इतना छोटा मायोपिया अगर रखोगे, इतना छोटा, आई मीन इनका विजन इतना छोटा रखोगे तो रीडिंग कैसे इंप्रूव होगी? हुँ? कल को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, खुद का स्टार्टअप करोगे, एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे जाओगे, इतना कुछ अगर करना है तो नॉलेज के बिना कैसे काम चलेगा? और नॉलेज आपको लगता है बिना रीडिंग के आ सकती है? दैट इज नॉट इवन पॉसिबल. फिर उसके बाद चाहे एमबीए कहीं छोटी जगह से हो भी गया तो भी काम चल जाएगा. बात समझना. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपने आईएम से एमबीए कर लिया तो भी कुछ नहीं होगा. और अगर आपके पास नॉलेज है और किसी एवरेज कॉलेज से कर लिया तो भी बहुत कुछ हो जाएगा. सो थोड़ा फंडामेंटली भी प्रिपेयर करो. बिल्कुल अपने आईएम के सपने को नहीं छोड़ना है, लेकिन फंडामेंटल प्रिपरेशन जरूरी है. हाँ, जब रिजल्ट्स आ जाते हैं ना तो स्टूडेंट्स के कॉल भी आते हैं मेरे पास, एंड वी टॉक अबाउट कौन सा अवेलेबल एडमिशन है, नेक्स्ट ईयर करूँ क्या करूँ. तो एक बहुत छोटा सा एक चीज बोलता हूँ मैं. आप सोचना इस बारे में कि देखो, या तो बेस्ट कॉलेज चले जाओ, you can always go to the best college available possible, and you can afford to be average there, or go to an average college and try to be the best there. बराबर हो सकती है चीज. ठीक है. लेकिन कभी ना कभी तो जिंदगी में मेहनत
वो करनी पड़ेगी जो आपसे नहीं हो पाती है। जब जब आप वही करते रहोगे जो आपसे हो पाता है, तो जिंदगी एक लेवल तक ही आगे बढ़ेगी। जब आप वो करोगे जो आपसे नहीं हो पाता, चैलेंज करते हो, फिर एक्चुअली आपके जो ट्रू कलर्स हैं ना, ब्यूटीफुल, वो बाहर आते हैं। पता है क्या आपको, एक छोटा सा एग्जांपल है। कल मेरे पापा आए थे, बात कर रहे थे मुझसे। तो उनके पास ना एक्वेरियम है। हम्म? उनके पास एक एक्वेरियम है जिसमें वो कुछ फिश रखते हैं। तो obviously I talk about his interest. So I started talking about his interest, and we started talking about those fish he has. उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि अगर ये सेम फिश को अगर एक नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाए, यानी कि अगर घर पे भी एक टैंक छत पे रख दिया जाए जहां धूप आती है, तो धीरे धीरे वहां पर इंसेक्ट्स भी डेवलप हो जाएंगे, और तो फूड भी डेवलप हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू पुट सम एक्वेटिक प्लांट्स एंड ऑल। पानी भी गंदा हो जाएगा, एल्गी आ जाएगी उसमें, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो ये जो फिश है ना, इन सब के कलर्स बहुत ब्राइट हो जाएंगे। जो रेड फिश अभी रेड लग रही है, उसका रेड इतना अमेजिंग हो जाएगा कि सो ऑब्वियसली उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट मैं सोच रहा था कि देखो, जब उनको हमने बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखा है, एकदम घर के अंदर हीटर वगैरह सब कुछ ऑन है, ऐसा थोड़ा खाना भी हम ही ने डाल दिया, तो वो कलर्स वो नहीं आते जो एक्चुअली होने चाहिए। when they come out of their comfort zone, when they make, when the things become difficult for them, ऐसा सूरज की रोशनी जब ऐसा धूप पड़ रही होती है, तब उनके भी कलर्स निखरते हैं। सो आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में हो, तब तक कलर्स नहीं आएंगे ब्यूटीफुल वाले। सो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आरसी के लिए नहीं करना है, रीडिंग करना है फंडामेंटल रीजन के लिए, नॉलेज के लिए। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? साथ हैं या सो गए, या सुबह सुबह लोरी की तरह सुन रहे हैं सब कुछ? हम्म? एक्सपीरियंस क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, फेलियर क्या होता है? सक्सेस और फेलियर तो एक्चुअली कुछ नहीं होता यार। अच्छा वो बताओ, 10th स्टैंडर्ड में अमेजिंग मार्क्स किस किस के आए थे? 10 on 10 CGPA, या अच्छे मार्क्स, इसको जो खुश हैं अपने मार्क्स से, बताना जरा किस किस के आए थे? मेरे आए थे, लाइक विकी के आए थे, ओके, प्रहलाद के आए थे, स्वप्निल के आए थे। अब एक बात बताओ, क्या काम आ रहे हैं वो? कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे रीडिंग डेवलप हो जाए, जिसकी लैंग्वेज इजी हो? ताहिर, पुट दिस इन द मेन कमेंट लेटर, टेलीग्राम पे डाल दे। यहाँ तो खैर मेन कमेंट बॉक्स कुछ है नहीं, पर अपन भटक जाएंगे अगर मैं आंसर देने लगूंगा तो। सो देखो, जो भी मार्क्स आए थे ना 10th स्टैंडर्ड में, वो किसी काम नहीं आ रहे। हमको ये समझ में आया कि हमारे मार्क्स तो आ गए, 10 on 10 CGPA भी आ गई, और अपन खुश भी हो गए। लेकिन अगले दिन पता चला कि अब तो नया सब्जेक्ट आ गया, जितने ज्यादा मार्क्स आए थे उसी के हिसाब से सब्जेक्ट भी डिफिकल्ट दे दिए गए। अब तो कहानी वापस से नई शुरू हो गई, है ना? हो जाएगा, अच्छा पक्का हो जाएगा। तो फिर से कहानी नई शुरू हो गई। या 12th स्टैंडर्ड में, अच्छा चलो एक बात बताते हैं, 12th स्टैंडर्ड में एग्जाम का रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट आया, तो अपन ने पार्टी की, है ना? कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टी भी की होगी। वो पार्टी याद आती है याद करने से, या उससे भी आसानी से वो रातें याद आती हैं जब वो खूब सारी मेहनत हुई थी, रात रात भर जागे भी थे, और फिर एग्जाम दिया था, फिर रिजल्ट अच्छा आया था। ज्यादा आसानी से वो ऑल दो नाइट्स यू रिमेंबर व्हेन यू एक्चुअली वर्कड हार्ड, और व्हेन थिंग्स वर डिफिकल्ट। एग्जैक्टली, अच्छा एग्जैक्टली। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये सारे एक्सपीरियंसेस थे, उनमें सक्सेस और फेलियर अब याद नहीं आता। व्हाट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इन दो सक्सेस एंड फेलियर, वो याद रहता है आपको। और उसमें से भी अगर अपन बात करें सक्सेस की, तो आज तक सक्सेस ने बहुत ज्यादा किसी को कुछ दिया नहीं है एक्सेप्ट ईगो। फेलियर एक्चुअली ऐसा होता है कि वो आपको एक लर्निंग देकर जाता है। सो दोनों ही जरूरी हैं हमारे को। हम दोनों में से कुछ सोचें कि इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन आर्मी में अगर आपने if you've not been failure in your life at least once, you can't even apply for their job, वो रिजेक्ट कर देते हैं। जिससे कि आपका फेलियर एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप फेलियर एक्सपीरियंस आपने नहीं किया है, इसका मतलब आप लाइफ में फ्लेक्सिबल ही नहीं हो पाएंगे, फिर आप प्लान बी कभी नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि आपने अगर जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस देखी है, तो आप हमेशा प्लान ए पे रहते हैं। उस जैसे आपका प्लान ए काम नहीं किया,
आप बिखर सकते हैं और वो ऑस्ट्रेलियन आर्मी कैन नॉट अफोर्ड। सो दोनों का मिक्सचर तो जरूरी होता है। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ जो ये है, ये विक्की है, अमन है, ताहिर है, अच्छा है, मानसी है, ये जो है इसका पर्सनली लर्निंग कोशेंट क्या है। अब इसका अगर एलक्यू लो है तो चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, उसको कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर लर्निंग कोशेंट हाई है तो ये सारा कुछ हेल्प करता जाएगा, एंड देन यू विल कीप बिकमिंग अ बेटर पर्सन, बेटर लाइफ। गाड़ी, बंगला, घर का सफेद रंग का अच्छा सुंदर महंगी ब्रीड का कुत्ता, सब कुछ होगा, सिंपल है। लेकिन लर्निंग कोशेंट नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है। और सक्सेस होती है नो इन एवरी वे पॉसिबल व्हेन यू कैन मेक योर लाइफ बेटर, in every way possible. I'm not saying only as philosophically, your mind, intellectually. No, no, it's your car also, it's your intellect also, it is the happiness of your loved ones, it's your own happiness, everything that actually is success when you can make things better, right? That doesn't say that happiness is like when I'm not supposed to do hard work, or when I have to अब सब कंफर्ट जोन ही है, नहीं, वो हैप्पीनेस या सक्सेस नहीं है। कंफर्ट जोन से लड़ते रहना तो बस एक सिंपल एक तरीका है अपना, है ना। चलिए, समझ में आता है कुछ कुछ। हम बात कर रहे थे सेल्फ अवेयरनेस की, कि सेल्फ अवेयरनेस है क्या। सो अपनी हॉबीज, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपने अचीवमेंट। अब यहां से एक वर्ड है सिंपल, अचीवमेंट। ये अचीवमेंट क्या होता है? मेरा विद ग्रेजुएशन मेरा दो जगह से कॉल आया था। मतलब दो जगह क्या, एक्चुअली आई टुक 2003 कैट, एंड 2003 कैट गॉट लीक्ड। पहली बार और आखिरी बार कैट के साथ ऐसा हुआ कि कैट का एग्जाम लीक हो गया। तो फिर वापस से फरवरी में हुआ। उससे पहले मेरा एससी में शादी का रिजल्ट आया। उस टाइम पे स्नैप नहीं होता था, उस टाइम पे सब सिम्बाइसिस के अलग अलग होते थे, और एससी में शादी का रिजल्ट आया था। एससी में शादी का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, एंड माय टीचर्स यूज्ड टू से कि मैं, अगर मेरा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो इंटरव्यू तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा, समहाउ उनको ऐसा लगता था। तो I just remembered those days. So उस टाइम पे क्या हुआ, when I got this call, December result आया snap इसका SMHRD का, and I had my interview on 19th or 20th January. So इतने से दिन मिले थे बस, 20 से 25 दिन प्रिपेयर करने के लिए। फिर प्रिपेयर क्या करें, अब दोबारा कैट होगा, उसका प्रिपेयर ज्यादा करें क्या नहीं करें, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी था। I went for this interview. So SMHRD इंटरव्यू में they gave us a form and they asked us to fill up that form. उसमें एक यूजुअली यही करते हैं ये एडमिशन प्रोसेस में कॉलेजेस, ये आपका रिज्यूमे नहीं मांगते, आपको एक फॉर्म दे देते हैं भरने के लिए। वो एक तरह का काइंड ऑफ रिज्यूमे होता है, ठीक है। बाकी आपको अपना रिज्यूमे भी रेडी करना होता है, कई बार वो पूछ भी सकते हैं। सो दे गिव अस अ फॉर्म एंड वी फिल्ड इट अप। दे दिया, इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। इंटरव्यू में गए तो द मोमेंट आई एंटर्ड, द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट, ऐसा बड़ा सा रूम था, आईमा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में इंटरव्यू था दिल्ली में। तो बड़ा सा रूम था, and the person was sitting there, and I just opened the door, said good afternoon, and I entered. So the moment I entered, he said, okay, so Mr. Sharma, you sing. मैंने अपनी हॉबीज में लिखा था सिंगिंग, दो आई नेवर sang ऐसा ऑफिशियली और कुछ। उस समय तो आवाज भी थोड़ी अच्छी थी, आज तो थोड़ी इट्स लाइक रानी मुखर्जी जैसी आवाज हो गई मेरी पर। तो यस सर, फिर सिंग अ सॉन्ग। अब इतना बड़ा बीच में डिस्टेंस है, सामने बंदा बैठा हुआ है, मैं यहाँ से चिल्लाऊंगा थोड़ी, मैं वही बैंड वालों वाला थोड़ी गाता हूँ दे दे प्यार दे, इतनी दूर से कैसे गाऊंगा, और कोई म्यूजिक नहीं कुछ नहीं, मतलब। बट आई वाज प्रिपेयर्ड, माय मेंटर टोल्ड मी, दे कैन आस्क यू, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड दैट व्हाट सॉन्ग एंड एवरीथिंग। Now I kept on talking to him like, sir, this is the song from this film, and would you mind if I just sing from the stanza? I said yes, yes, yes. So वहां तक करते करते I covered the distance and I sang, and then he asked me to sit down, and the first thing he said that, why did I ask you to sing? I said, sir, you may have a number of reasons. You are a learned man and you deserve to assess me. So I would not be able to comment on that, that why did you ask me? You have your own reasons. But this is for sure that you did not ask me to sing, to assess my singing ability. You must be assessing that how justified I am and committed I am to my own hobbies. Then he gave me a smile. 2003.
Acha, huh. Acha asked me like which exam, which year did you appear? So, so then, then the second question was that in the, in the form achievement wale column mein, you did not write anything. It means, and it means so that what what the form says, I do not have those achievements. So he said, it does mean that you do not have any achievement. And you know, sir, I did not mean that. I did not say that. So क्या था फॉर्म में लिखा होता स्कॉलरशिप ब्रैकेट में था अवार्ड्स मेडल्स ऑनर्स एक्सेट्रा मैंने कहा सर इफ यू टॉक अबाउट अवार्ड्स एंड मेडल्स एंड ऑनर्स तो वो मेरे पास कुछ भी नहीं है I'd been always academically I'd been an average student so said then no achievements मैंने कहा नहीं सर achievement है so he said what he said sir I'm talking to you I'm sitting in I'm sitting in front of you I've got this call I'm experiencing this moment at this, right now. This is one of my achievements in life. The kind of a school, the kind of the family I belong to. I've never studied, chemistry or physics. I've studied Rasayan Vigyan and Bhautik Vigyan. So, clearing this kind of an examination, coming here, talking to you in English, and both of us are communicating, and that too in a language which had been a nightmare for me. So personally, if you ask me, I've already earned a lot by reaching to this point, and this is an achievement. So, and after that, the interview went on a very positive note. I got through, but उसके बाद फिर आपका ये हो गया, कैट हो गया था, तो IIM हो गया, तो फिर obviously वहाँ नहीं गए. But it was a beautiful experience. So from here, what I would want to tell you that achievement is not what you can write in your resume or in the forms or something. Achievement is what you feel that's your achievement. Now, if you talk about speaking English, oh my God, I mean, can this be an achievement? No, it cannot be for you, for someone. But for me, yes, it is. Because I remember after school also, uh, when I went to Delhi University and I started studying there, there was a correspondence course. I did not even get admission in the main course. So I still remember that, there used to be a moment where somebody would come in front and say, "Hi, how are you?" So पता नहीं था कि "Hi, how are you" को भी जवाब कैसे देते थे आंखों के सामने अंधेरा बिल्कुल खाली. So मैं डिसाइड करूंगा ना कि मेरे लिए अचीवमेंट क्या है. अगर मैंने किसी को आज सड़क पार करवाई हाथ पकड़ के maybe because of age or the person was visually challenged or something, I personally feel it as an achievement. So you decide what's achievement for yourself. आया कुछ कुछ समझ में? So जब आप अपने सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हो तो ऑब्जेक्टिवली मत देखो. यू हैव टू डिग इन. ऐसा अंदर जाके सोचना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है. तो अचीवमेंट्स हैं. सो सेल्फ अवेयरनेस ऐसा टाइम पास ऐसा मैकेनिकली नहीं. इट विल टेक some time and there'll be questions. 70% questions in your interview would be on self awareness, not less than that. कुछ कुछ आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? चलिए उसके अलावा जीडी कॉन्सेप्ट्स पे भी हम कुछ कुछ बात कर सकते हैं. जीडीज क्या होते हैं? इनफैक्ट एक क्वेश्चन है जैसे कि लॉट ऑफ पीपल नाउ आफ्टर माय एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग आई वुड लाइक टू टेल all those who feel, in fact, who do not feel too confident about their English, about their language. Yahan, especially when it comes to this country, you can speak English. You might not feel superior, but if you cannot, there are people who can make you feel inferior. So, first and foremost, not to worry. Excellent holdover English means nothing. Honestly, it's nothing. What's more important is content. If you can manage to get your call from IIM Ahmedabad, you reach there, and while talking to them, like देखो ये तो आप नहीं कह सकते कि सर मैं हिंदी में बात कर लूं क्या. नहीं, no, that's not possible because business is English. Business language is English globally. So simple is, can you convey your idea in English? If you say yes, your job's done. If I say that, do you understand what's being spoken in English? If you say yes, your idea, your task is done. You are not supposed to speak very fluently or like flawless English in amazing accent or pronunciation. No, not required.
you know. But especially if I talk about, how much, what kind of a pronunciation. I tell you a small example. हम लोग IIM Calcutta में थे, तो in my first semester, there was a professor. हम लोग का मैथ्स कॉमन होता है, ओके, आपका ऐसे अलग नहीं होता, स्टूडेंट्स का अलग और ऐसा अलग नहीं होता है. तो ड्यूरिंग आवर लंच टाइम और समथिंग, दिस प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स, यूजुअली होता ही था कि वो भी उसी टाइम पे खाना खाते थे, एंड ही ऑलवेज पास बाय एंड से के पास मी द कार्ड. अब उनका तो अलग सा ही टोन था बिल्कुल बोलने का. मैंने वो जब भी वो बोलते, मैं इधर उधर देखता और कोई और उनको हेल्प करके निकल जाता. 2-4 बार ऐसा हो गया. मुझे समझ नहीं आया कि वो पूछते क्या है, ये कार्ड कहाँ से, मैं कौन सा कार्ड लाके दूं, कहाँ से कार्ड कहाँ से लाऊं मैं मैथ्स के अंदर, कौन सा. Are we connected again? I think we just got disconnected in between. Are we? सो मुझे बहुत दिनों तक तो समझ में नहीं आया कि कौन सा कार्ड चाहिए. उसके बाद किसी ने बताया कि इनको कर्ड चाहिए, कर्ड, दही, मिष्टी दोई, वो चाहिए इनको. बहुत दिन तक तो मैं परेशान रहा, और उसको वो बोलते थे, फिर मैं समझ नहीं पाता था. वो 2 गालियां मुझे बंगाली में देके निकल जाते थे इधर उधर. तो ऐसा नहीं कि आई एम कैलकाटा में मतलब कैलकाटा प्रोफेसर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक दो होते हैं, तो थे. तो मुझे समझ में नहीं आया कि कार्ड क्या है. अब कार्ड तो कार्ड था. हाँ, ठीक है. सो ऐसे बहुत सिंपल सी बात है. कैन यू कन्वे योर आइडिया इन इंग्लिश? यस, डन, योर जॉब्स डन, खत्म. हाय लवेश. सो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं होगा अपने पास. तो भी जीडीज हैं, इंटरव्यूज हैं, रिज्यूमेज हैं, उनके बारे में बहुत सारी बात है. सो कंटिन्यू करेंगे कभी. साइन ऑफ करने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अबाउट फ्यू थिंग्स दैट, गाइस, एक तो संडे का 29 अगस्त का ये मत छोड़ना अपना मेगा कॉम्बैट. ठीक है, ये सबको करना ही है, अटेंड. ठीक है. नंबर 1 is this. Number 2 is just a sec. हाँ, बाकी तो guys, there were a lot of things we can talk about. So like why MBA, या फिर कुछ FAQs होते हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा अभी से सोचना शुरू कर सकते हो. गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं आपकी, क्यों जाना है कोई पर्टिकुलर बी स्कूल ही क्यों जाना है, या हॉबीज इंटरेस्ट की बात हो गई. अपना फेवरेट सब्जेक्ट फिगर आउट कर लो कौन सा है, उसको थोड़ा काम धीरे धीरे करना शुरू करो साथ साथ में, कि भाई उस पर क्वेश्चंस होंगे. अचीवमेंट्स क्या हैं आपके अकॉर्डिंग टू यू. सो ऐसे कुछ FAQs हैं. यू कैन ऑलवेज टेक अ PDF downloaded of this particular session and then you can work on it, so we can have one more session sometimes. Okay, so see, we have a lot to talk. You have some questions you can ask. Otherwise, let me just remind you that now today we have VARC assessment round 2 at 1 o'clock. ठीक है, ये तो आज अपना है ही. इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 1 सितंबर से होगी. ठीक है, आपका मेरी साइड से 4 days का ऑफ रहेगा. आई वुड बी ट्रैवलिंग आफ्टर टुडेज क्लास ओनली. ठीक है, ओके. सो अब हम मिलेंगे अपना रिवीजन बैच 2.0 लेके. रिवीजन बैच 2.0 में अपन थोड़ा सा बढ़ा देंगे थोड़ा लेवल को. बाकी बीच में 4 days का ऑफ रहेगा. ठीक है, डन. चलें आगे, फिर बढ़ जाए जिंदगी में. आई होप कुछ कुछ चीजों में सेंस हुआ होगा, कुछ कुछ थॉट्स रहेंगे. जो एक आइडिया, जो थॉट रह जाए माइंड में, यू कैन ऑलवेज पुट इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, व्हाटएवर योर फील इज. सो ये बातें एक्चुअली खत्म नहीं होती, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं. एंड आई स्ट्रांगली फील दैट समटाइम्स I get an entire day with you all and I can tell you that guys need to look into a lot of things. But हाँ, comprehensively when you prepare हो जाएगा. फाउंडेशन बैच भी फर्स्ट से ही होगा, सब कुछ अब फर्स्ट से होगा. आज का एक सेशन और है 1 o'clock एंड बस उसके बाद फर्स्ट से. ठीक है, चलो. जब तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ अपने, आपको पता ही है, हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है. एंड गिव योरसेल्फ मोर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन विद प्लस और आइकनिक इफ यू वांट.
CAT 21-22 students must go ahead with your structured preparation. Jahan, you'll be investing so much on your MBA. Do not shy in investing some more, which is not even 1% of what exactly the fees and all would be. So go ahead and pick up your subscription, guys. Go for long term, make it be more cost effective. You can use my code that will give you 10% additional benefit. फाउंडेशन बैच जो होगा ताहिर, वो 9 o'clock होगा 1 September ऑनवर्ड्स. अगर टाइम में कोई चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा. द यूट्यूब चैनल ऑफ दैट वुड बी अनअकैडमी आईपी मैट एंड मैनेजमेंट एग्जाम्स. इस पे फाउंडेशन बैच करेंगे. जो अनअकैडमी कैट है उस पे अपना हाँ, खूब सारी रीडिंग करो स्वप्निल. 4 दिन खूब सारी रीडिंग करो. What would be your steps to get subscription? These are the 3 steps you can go for. Get subscription, choose CAT, and plus, and how many months and duration and everything. Revision batch from 1st September now. और उससे पहले जो प्लेलिस्ट है वो मैं एक बार फिर से टेलीग्राम पे शेयर करवा देता हूँ मान्या से, और you can rather ask Manya to share. And that playlist, that entire playlist of revision batch are 20 sessions आज का मिला के. वो आप you can always share with your friends or batchmates or whoever you feel that can be can take benefit out of that. ठीक है, तो दोनों चैनल ही आप सब्सक्राइब कर लो. एक तो अनअकैडमी आईपी मैट वाला भी और अनअकैडमी कैट पे. तो आप लोग नहीं हो तो आ जाओ. ठीक है. So that's all from my side, guys. Just wanted to talk about a few things. Didn't want to teach today. Just I thought an important discussion we can have. I hope things make sense to you. If not today, they will someday. Bye, everyone. We'll see you at 1 o'clock and after that on 1st September. Bye.